Without doing meditation, you cannot understand Bhagavad Gita. ये भगवान कृष्ण का आदेश है भगवान अर्जुन को। यही है भगवत गीता का आदेश। पहला आदेश का पालन करेंगे, फिर भगवत गीता को समझेंगे। कृष्ण जी का आदेश है, हे अर्जुन, आप योगी बनिए। When you understand the spiritual dimension of your own self, when you experience the spiritual dimension of yourself, that's what is called a jnani. That's what you are called a spiritual. So according to WHO, everybody has to become spiritual to become healthy. Your health is your personal responsibility. Because you have created the disease and it is for you to heal yourself through becoming spiritual. That is the way. तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, आप योगी बनिए। तपस्विभ्याधिको योगी, एक तपस्वी से भी एक योगी अधिक है। तपस्वी यानी जो उपवास करता है, तन को पीड़ा देता है, एक पांव के ऊपर खड़ा हो जाता है, तपस्वी है। तपस्विभ्याधिको योगी, एक योगी, एक ध्यानी, एक तपस्वी से भी ज्यादा है। ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, ये भगवत गीता में। ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी, इट मीन्स एक अच्छे काम करने वाले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल, उनसे भी अधिक है एक योगी। इसलिए आपको योगी बनना ही है। हरेक नर को, हरेक नारायण का एक ही संदेशा होती है, अरे बाबा आप नारायण बनिए। जब तक आप ध्यान में नहीं आते हैं, you don't understand the spiritual component, you are a nर। जैसे ही आप ध्यान में आ जाते हैं, अपना ही स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर देखते हैं, then you become a Narayan. 30 years back, I was a nर, but एक मोड ऐसा आ गया था, मैं ध्यान में प्रवेश किया, मैं नारायण बन गया। मैंने गांव-गांव जाना शुरू किया, शहर-शहर, हर एक नर को बिठाऊं मेरे सामने, अरे नर तू बैठ जा मेरे सामने, मैं तो नारायण बन गया, आप भी नारायण बनिए। आंखें बंद कर लीजिए, मन को शून्य करिए, योगी बन जाइए, ताकि आप भी नारायण बन जाएंगे अनतिकाल में। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। दैट इज द फाइनल श्लोका। जहां श्री कृष्ण होता है, जहां श्री अर्जुन होता है, वहां ही ऐश्वर्य, मोक्ष, विजय, आनंद, भोग सब कुछ होती है। एवरीथिंग यू गेट through your meditation. That is the nichod. Yatra yogeshwara Krishna yatra partho dhanurdhara tatra srir vijayo bhutir dhruva nitir madirimam. Sri means wealth. Vijaya means victory, success. Bhuti means happiness, santosh, anand. Dhruva niti means justice. You will know what to do, what not to do, what is right, what is not right. Everything you will understand. All these things you get through your meditation. You have to be a king of meditation, my dear friends, like Krishna is. You should not remain like an Arjuna without doing meditation. You must become like a Krishna, a master of meditation. That is the nichod of Bhagavad Gita. That is the nichod of India. That is the nichod of all spiritual masters. If WHO mentions spirituality, then you should become spiritual. There is no alternative. If you believe in Krishna, you should become spiritual. There is no alternative. If you believe in Jesus Christ, you should become spiritual. There is no alternative. And how do you become spiritual? You close your eyes and observe your breath. Become a master of meditation. That's how you become spiritual. न जायते म्रियते वा कदा चिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. What does it say? It means you are the Atma, ancient Atma. When the body dies, the Atma does not die. That is the first thing. And Krishna said, Ashocyan anvashocastvam prajnavadamsha bhashate gatasun agatasuncha na anshocante pandita. Gatasun agatasun. Gatasun means जो चल गया है. अगतासुन मीन्स जो अभी नहीं गया है, हम जैसे यहां है. एक पंडित दोनों के लिए रोता नहीं. हाँ, मेरी मां मर गई, मेरा पिता मर गया, रोता नहीं. अभी मेरा मां नहीं मर गई तो अच्छा होता, रोता नहीं. जो रोता है किसी कारण, वो अपंडित है, मूर्ख है.
हम किसे पंडित कहते हैं? जो अपने आप को पहचाने कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा, शरीर होते हुए हम आत्मा भी हैं, आत्मा होते हुए हम शरीर भी हैं, तो उसे कहते हैं पंडित। पंडित यानी पीएचडी नहीं, ऑक्सफोर्ड रिटर्न नहीं, पंडित यानी योगी। दो जगह पंडित का उस लफ्ज का जिक्र किया गया है। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वः प्रज्ञावादांश भाषते गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ते पंडिता। किसी कारण कोई भी बंदा रोता है तो वो अपंडित है, मूर्ख है, अज्ञानी है, बेवकूफ है, स्टूपिड है। और सबको एक समान देखना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक चंडाल, शूद्र, सभी को एक बराबर देखना है, तभी तो आप पंडित हैं, तभी तो आप आत्मज्ञानी हैं। आप उधर बैठिए, आप तो देखने लायक नहीं, अछूत हैं आप, ये आत्मज्ञानी का, पंडित का लक्षण नहीं। सबको बराबर देखे, समत्वम योग उच्यते। आप पंडित बनो, पामर मत। यू हैव टू बिकम ए पंडित, यू हैव टू बिकम एनलाइटेंड। एन एनलाइटेंड मास्टर इन संस्कृत इज कॉल्ड ए पंडित। आपको पंडित बनना ही है, नहीं तो आप पामर है, अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, पामर। आपको पंडित बनना है, आपको अपने आप को जानना है कि आप आत्मा भी है, परमात्मा भी है। हम कैसे जान लेंगे अपने आप को? मेरे शरीर में, आई डोंट नो, देयर मे बी हार्ट हियर, स्वामी जी, आई हैव नॉट सीन। देयर इज हार्ट, किडनीज, पैंक्रियास, लिवर, न जाने क्या क्या है। इफ यू ओपन द बॉडी यू विल सी, इफ यू डोंट ओपन द बॉडी यू कांट सी आउटसाइड। सिमिलरली if you want to know the atma, you have to close your eyes and observe the breath, then only you can see. मैं हैदराबाद से हूं, मैं कभी चंडीगढ़ देखा ही नहीं, इसका मतलब ये कि चंडीगढ़ है ही नहीं। अरे बाबा, आप नहीं देखे इसलिए ये साबित नहीं होती कि वो नहीं है। आप आत्मा को नहीं जानते हैं, परलोक को नहीं जानते हैं, देखे नहीं, स्वर्गलोक नहीं जानते, इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे बाबा, आपको कुछ करना ही पड़ता कुछ जानने के लिए। तेत्वं भूत्वा स्वर्गलोकम विषादम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामाद अभन्ते। गता आगता, गता आगता, जाना आना, जाना आना, काम अकामाद अभन्ते। आपके ही डिजायर से, आपके ही काम से आप आते हैं और जाते हैं। अपने ही कारण आप आते हैं और अपने ही कारण जाते हैं। जैसा चंडीगढ़ में अपने ही कारण आया हूं, 2 दिन के बाद मेरे ही कारण में जाऊंगा। शरीर में हम अपने ही कारण उतर आए हैं और अपने ही कारण जाएंगे। समझना मुश्किल है, परंतु हकीकत है। पंजाबी सीखना मुश्किल है मेरे लिए, परंतु पंजाबी तो सीखना ही है। अगर मुझे पंजाब में रहना है तो आप आंध्र प्रदेश जाएंगे तो तेलुगु सीखना ही है आपको। तो अमेरिका जाएंगे तो आपके पास डॉलर्स होना ही चाहिए। परलोक जाएंगे तो वे लोग पूछेंगे, यहाँ का ज्ञान है क्या आपके पास, यहाँ का परिचय है क्या? नहीं है तो चले जाओ डरते हुए। जब तक आप यहाँ का परिचय उधर ही आप नहीं ले लेंगे तो आप यहाँ नहीं आ सकते। तुरंत ही आपको भेजा जाएगा। हम बार बार जन्म लेते हैं, 1000 बार जन्म लेते हैं। भगवद गीता में जिक्र किया गया है, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनोतान्य। हम वेद अनेक अनेक जन्म लिए हैं, मैं तो सब कुछ जानता हूं। तू तो उल्लू का पट्टा है, तू कुछ भी नहीं जानता है। तू तो योद्धा तो है परंतु उल्लू का पट्टा। मैं योद्धा भी हूं, मैं योगी भी हूं। श्री कृष्ण ने एक महान योद्धा, चाहे तो अकेला सबको मार सकता था, नहीं मारता। दूसरों का होमवर्क वो नहीं करता। हम हरेक को अपना ही होमवर्क हमें करना है। अपना सुदर्शन चक्र ऐसा फेंका तो सारे कौरव नाश हो जाते थे, पर ऐसा ठीक नहीं है। अगर मैं आपके सर के ऊपर मेरा हाथ रखूं, आपका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा, कैंसर भी ठीक हो जाएगा, परंतु मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आपका होमवर्क आपको ही करना है। डैडी डैडी मुझे मेरा होमवर्क करो, ड्राइंग करो ऊंट का, हाथी का, तो आप करके देते हैं क्या? यू विल नेवर डू द होमवर्क ऑफ अदर्स। योर सर दर्द हैज कम बिकॉज ऑफ यू एंड इट हैज टू गो बिकॉज ऑफ यू। If I keep on removing your headache, you will keep on getting headache again and again. Come to me. You are like a parasite on me, dependent upon me. I waste my time on you and you are wasting your own time. आध्यात्मिकता का निचोड़ है, you become self-dependent. You do meditation and you clear your own headache, you clear your own cancer.